Hello dear students, today I am going to start a new chapter in part 2 Elements of Accountancy Standard 11 Commerce. Chapter number 10, session number 1 of Accounts from Incomplete Record. Up to the particular 9 chapter, actually some of the chapters are not there in syllabus, जैसे कि 7th number, right? Also 5th is running. So you know that one के whatever the different type of the chapters are completed, under that we took a proper record. For example, transactions, whatever the transaction was there in journal, it was through the vouchers, purchase, sale, purchase return, sales return, cash transactions, credit transactions, whatever. So different type of the transactions were there on the basis of the some records, say voucher, evidences. But sometimes it happens that in some of the small businesses, this type of the bills, indents, different type of the vouchers are not available. The reason is that the business is very small. So how they will utilize or how they will issue this type of the bills to the debtor, right? Or somehow whenever the particular payment is done, how the receipts are given. So simply we can say that in our accountancy, some of the accounts are there. Under that, sometimes some records are not available or records are there, but that records are incomplete. So how you will write down the accounts? Because it is compulsory to write down the accounts. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट ढूंढने के लिए अकाउंट लिखना ही पड़ेगा टू पे द टैक्सेस, कितना परचेज है कितना सेल है, राइट? कुछ भी ना लिखो तो एंड में ये तो मालूम करने के लिए लिखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का टोटल प्रॉफिट क्या है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो लिमिटेशंस है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, उसको कुछ ना कुछ तरीके से अकाउंट्स देखता है और उसके लिए भी एक पर्टिकुलर हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम है. सो फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली 5 पॉइंट्स आर देयर एज पर द पर्टिकुलर लिस्ट. 1 2 3 4 5 5 तक है. 6 7 8 9 10 11 कोई भी पॉइंट नहीं है, एज वेल एज उसका कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं है. Then only and only 5 points, that is the particular theory portion, that is introduction, meaning of single entry system, characteristics of single entry system, uses of single entry system and limitation of single entry system. कई लोग इसका यूज़ करते हैं, राइट? बिजनेसमैन कौन इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज. So normally to prepare accounts in trading units or business units, they are given two effect for all economical, that is monetary transactions. So whenever any type of the transactions are there, right, mostly we can say non-economic transactions are not recorded in the books of account, but economically monetary transactions are recorded in the books of account. So by this, all accounts are prepared in a business by double entry accounting method, debit and credit. सम स्मॉल ट्रेडर्स लाइक हॉकर्स, आपको मालूम है हम OCM में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? सोल ट्रेडर्स, राइट? सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हैं. स्मॉल शॉपकीपर्स और स्मॉल रिटेलर्स डू नॉट कीप द अकाउंट्स कंप्लीटली एज पर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. बिकॉज उसका रीज़न भी है, बिकॉज देयर यूटिलिटी ऑफ कीपिंग द बुक्स अकाउंट्स इज़ वेरी लिमिटेड. उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और शायद वो उसका नॉलेज नहीं रखते तो उसका एक्सपेंसेस पे उसको लगता है, राइट? उसका तो उनका इनकम भी जनरेट नहीं होता है पर ईयर का उतना, यानी कि उसको पे करना पड़ता है, राइट? द पर्सन हु इज राइटिंग डाउन द अकाउंट्स 5,000 10,000 जो भी है. सो कीप इन माइंड कि डबल एंट्री सिस्टम ये फॉलो नहीं करते हैं. तब हॉकर्स है, स्मॉल ट्रेडर्स है, राइट? वो शॉपकीपर्स है. द रीज़न इज देयर कि उनकी जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है बहुत कम है, लिमिटेड है. सो लाइक व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस, यानी देयर यूटिलिटी ऑफ कीपिंग द बुक्स अकाउंट इज़ वेरी लिमिटेड. उनको क्या जानना है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच कैश बैलेंस इज देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एंड ऑफ द डे और मंथ, राइट? तो ये सब तो सिंपल है ना. प्रॉफिट लॉस क्या है, ईयर के बाद मालूम पड़ेगा कितना कैश बचा है, आज का, महीने का, वीक का, 6 महीने का. व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम द अदर्स, कितना लेना है. व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू अदर्स, कितना देना है. So etc points are there. So they are not given double entry effect, two effect for every economical transactions. For some transactions they are given only one effect in the books as per their requirement. तो ये हो सकता है, हाँ, तो हमारा अकाउंट इसको अलाउ करता है,
उसी को हम आज सीखेंगे, दैट इज सिंगल एंट्री। तो ये स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है इनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, शॉपकीपर्स, हॉकर्स जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं ना, ये सब इसका यूज़ करते हैं। कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा हाथ में है, राइट, ये सब कॉमन इनकी जो नीड होती है। और मंथ के एंड में कितना क्या पैसा बैंक में पड़ा है, हाथ में कितना है, दैट्स ऑल, राइट, और कितना प्रॉफिट लॉस है साल के बाद। सो स्मॉल ट्रेडर्स कीप द अकाउंट्स or books with incomplete records, and these accounts being in incomplete form so are known as accounts from incomplete records। तो ये incomplete manner में है, incomplete form में है, that's why it is known as accounts from incomplete records, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, that is the reason। so it is also known as the single entry system, क्योंकि यहाँ डबल एंट्री नहीं आएगी। डबल एंट्री सिस्टम होगी तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है, तो यहाँ पर ओनली सिंगल एंट्री है। सो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑल्सो नोन एज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग। हियर द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। स्मॉल ट्रेडर्स डू नॉट मेंटेन कंप्लीट अकाउंट्स एज इन डबल एंट्री सिस्टम। इंस्टेड ऑफ दिस दे कीप ओनली कैश बुक एंड लेजर and record transactions relating to cash and personal accounts only। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई ना, they will write down only the cash related transactions and personal accounts। okay, so simple type of the real accounts are not available। કાંઈ આમ જોવા જાવ તો પરચેસ સેલ એવું હોતું નથી, તો રિયલ એકાઉન્ટની કદાચ જરૂર પણ ના પડે। or another thing, assets or other things are not necessary, so they will write down the entry system right on the basis of single। तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड्स रखते हैं अकाउंट्स का, वो डबल एंट्री नहीं है, सिर्फ वो कैश बुक रखते हैं, सिर्फ वो लेज़र बनाते हैं। इसमें भी डबल एंट्री चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है उसके पीछे भी रीज़न है, राइट। और ऑल्सो वी कैन से कि पर्सनल अकाउंट ओनली। सो इन दिस सिस्टम डबल इफेक्ट मे नॉट बी गिवन टू ईच ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। तो ऐसा भी नहीं है कि वो डबल एंट्री नहीं देने वाले, देंगे, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन में नहीं यहाँ पे, in the sense that they will not give the entry of the double in the every transactions। whatever the important entries are there, maybe they will looking after that one, right। ऐसा भी नहीं उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन ही इतना नहीं है। ओके, सो वी कैन से कि इन दिस सिस्टम डबल इफेक्ट मे नॉट बी गिवन टू ईच ट्रांजेक्शन। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ओनली वन इफेक्ट इज गिवन टू सम ट्रांजेक्शंस, हेंस इट इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। सो वेन एवर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज अराइजेस right in business, one effect is given, that's why it is known as the single entry accounting system। reason is that requirement के तौर पर एंट्री देते हैं, इसीलिए। in fact single entry system is not an independent method of keeping books of accounts। वो एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, ये भी याद रखो, राइट। हकीकत में देखा जाए तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए। हाँ, जैसे हमारा डबल एंट्री सिस्टम वो इंडिपेंडेंट है, राइट, ऐसे ये इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। सो सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग आपको लिखना हो तो यू कैन राइट डाउन वंस अगेन कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ओनली वन इफेक्ट इज गिवन ऑफ द ट्रांजेक्शन और सम ट्रांजेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सिंगल एंट्री सिस्टम। okay, and whenever the accounts are written on the basis of the incomplete record, it is known as account from incomplete records or single entry system, SES। now characteristics of single entry system, the first one, principles of double entry system। in a single entry system, when businessman has given two effects to any transaction, then he followed the principle of double entry system। for example, goods or assets comes in, it is debited, and this goes out, it is credited। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल डबल एंट्री सिस्टम के तो लगते ही है, राइट। सिंगल एंट्री सिस्टम में जब भी वो टू इफेक्ट्स कोई भी ट्रांजेक्शन का देता है, राइट, सो वो फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल, राइट। गुड्स और एसेट्स कम्स इन तो डेबिट एंड गोज आउट तो क्रेडिट। तो लेकिन डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट वो लिखते हैं, राइट, उसकी दूसरी एंट्री नहीं आती क्योंकि वो डायरेक्ट कैश से होता है, तो कैश में चली जाती है। तो सिंपल ये डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन, स्मॉल रिटेलर्स नॉर्मली ओनली सोल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स एंड स्मॉल रिटेलर्स कीप देयर बुक्स एज पर दिस सिस्टम। हालांकि कई लोग जिनके ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं ये इसका इस्तेमाल सीधी तरीके से कर लेते हैं। मोस्टली ये नाम याद रखना, ट्रेडर्स, शॉपकीपर और रिटेलर्स दो स्मॉल बेस पर काम करते हैं। थर्ड वन, मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सो इन दिस मेथड ऑल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड विद सिंगल इफेक्ट, क्योंकि वो इंडिविजुअल मेथड नहीं है, इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, इसीलिए सम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विथ वन इफेक्ट वेयर अदर्स आर रिकॉर्डेड विथ डबल इफेक्ट।
तो ऐसा नहीं रहेगा कि हर बार ये सिंगल इफेक्ट से जाएगा, कई बार कई एंट्रीज हमको डबल इफेक्ट से देनी पड़ेगी, इट इज़ कंपलसरी, राइट। सो यहाँ पर सिंगल एंट्री अकेली फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर है फोर्थ वन, बुक्स एज पर रिक्वायरमेंट। Traders keep a few books of accounts like cash book and ledger as per their requirement. ओके, सो कैश बुक आपको मालूम है उसमें हम डबल एंट्री को ही फॉलो करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कैश बुक की, तब वो कैश रखते हैं और कैश बुक रखते हैं, और उसके टाइम पर लेजर। सो जनरली डबल एंट्री है नहीं तो फिर जनरल एंट्री लिखनी ही नहीं आएगी, राइट, और लिखनी नहीं है तो फिर उसको पोस्टिंग भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला कई एंट्रीज होगी जो डबल एंट्री के तौर पर दी जाएगी, तो उसको लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ वन, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, यहाँ कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सी इन दिस मेथड देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द मेथड्स और सिस्टम फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन अकाउंट बाय ट्रेडर्स। हम तो जानते हैं कि जनरल बनाते हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है, उसका फॉर्मेट है, लेज़र पोस्टिंग जो लेज़र करते हैं उसके बाद उसका पोस्टिंग करते हैं, सो उसका फॉर्म है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। सो इन सब का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, उस फॉर्म को ही हमें फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो सम कीप ओनली कैश बुक वेल द अदर प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो। तो ये तो बात ये हुई कि जिसको जो बनाना है वो अपने हिसाब से बना लेगा, जो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर है नहीं है। तो कोई कैश बुक बनाए, कोई सब्सिडरी बुक बनाए, सब्सिडरी बुक्स कैश बुक उसका ही पार्ट है, लेकिन कोई कैश बुक बनाता है और कोई सब्सिडरी बुक के परचेज सेल बनाता है, कोई ऐसा होता है कि सिर्फ लेजर पोस्टिंग डायरेक्ट करता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी शायद नहीं रहती है। सिक्स वन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन दिस मेथड शुरुआत इससे ही हुई थी ना। सो देयर इज नो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन बाय अ ट्रेडर। सम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनकम्प्लीटली, दैट मीन्स और दिस मीन्स ओनली वन इफेक्ट हैज़ गिवन टू द अकाउंट्स। यानी कि ये जो मेथड हम फॉलो करते हैं वहाँ कंप्लीट रिकॉर्ड है ही नहीं, इसीलिए तो उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं, राइट। सो किसी भी रिकॉर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा। Seventh one, entry for internal transaction. In this method, there is no effect or entry for internal transaction of the business, that is depreciation on assets, interest on capital. तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं दी जाती है, तो ये इसकी हम लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखो कि जनरली जब भी जो ओनर है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत देते हैं, 5% 10%, लेकिन यहाँ ये नहीं, डेप्रिशिएशन जो मेन थिंग है असेट्स पर, राइट, वो भी नहीं ली जाती। तो हाउ विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर एसेट इन फ्यूचर, तो ये सब उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये सब 1-2 मार्क के लिए आपके लिए ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट, दैट इज द फोर्थ वन, यूजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। द फर्स्ट वन, 3 यूज है उसके, लिमिटेड ऑब्जेक्ट, एक्सपेंस इज लेस, कम टाइम लगता है, और लिमिटेड बुक्स है। लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेड ऑब्जेक्ट। This method is very useful for small traders like hawkers, small retailers or small shopkeepers because the utility to prepare the account is limited. तो उसकी जो उपयोग करने की उनकी जो भी तैयारी है बहुत लिमिटेड है, तो उसका ऑब्जेक्ट लिमिटेड है इन सब छोटे छोटे हॉकर्स या रिटेलर्स के लिए। तो उसके लिए यूटिलिटी प्रिपेयर अकाउंट बनाने की भी थोड़ी बहुत लिमिटेड रहती है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बुक्स बनाती नहीं हो तो एक्सपेंस भी लेस हो जाएंगे, तो लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम। In this method, all accounts are not prepared as per double accounting method. Okay, double entry accounting system यहाँ फॉलो नहीं की जाती है। So accounts are prepared with less expense and less time. उसके लिए एक्सपर्ट नहीं रखने पड़ेंगे, उसके लिए टाइम भी कम लगेगा। सो आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, सिंपल। और लास्टली बुक्स आर वेरी लिमिटेड। लिमिटेड बुक्स, स्मॉल ट्रेडर्स कीप द बुक्स एज पर देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसी ज़रूरत वैसी बुक। Normally they prepare only personal accounts, but they do not prepare real accounts and income and expenditure account, right? Income and expenditure account actually हमारे 9th चैप्टर में आएंगे, राइट, जब नॉन ट्रेडिंग का हम देखेंगे तब। लेकिन ये भी पर्टिकुलर कोई क्लब के लिए या वगैरह है। तो हमारे जो बिजनेस के रिलेटेड है उसमें हम बताते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जनरली ये रियल अकाउंट्स के कोई प्रिपरेशन ही नहीं होती एज सच गुड्स। इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। सो इट रिक्वायर्स लिमिटेड बुक्स। बहुत कम इन्फॉर्मेशन देनी है तो बुक भी लिमिटेड चाहिए। तो ऑब्जेक्ट लिमिटेड है, एक्सपेंसिस कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, और बुक्स भी कम है।
तो दिस इज और दीज आर द यूज ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम. नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज द लिमिटेशंस. तब इतना बड़ा जो बिजनेस चलाते हैं और उसमें अगर हम डबल एंट्री का यूज़ नहीं करते तो सम ऑफ द लिमिटेशंस आर देयर. द फर्स्ट वन, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. अब डबल एंट्री नहीं है तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? एज ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द बिजनेसमैन, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. डबल एंट्री नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा. सो हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. तो बनाया ही नहीं है तो फिर अरिथमेटिकली उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. द फर्स्ट वन. सेकेंड वन, प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड. जैसे हमने यहाँ बोला राइट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाते, तो इट्स नॉट प्रिपेयर्ड. So it is not possible to know the profit or loss at the end of the year like double entry system. हमारा 5th चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स, अभी आपने देखा कि उसमें हम प्रॉफिट और लॉस जो है वो ढूंढ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. तो यहाँ पर तो डबल एंट्री नहीं है तो फिर बैलेंस शीट नहीं बनती है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है एक्चुअली. तो प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनेगा तो प्रॉफिट लॉस भी हम असर्टेन नहीं कर पाएंगे लाइक डबल एंट्री सिस्टम. थर्ड वन, फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट भी नहीं बनेगा. सो इन दिस मेथड एंड एसेट्स अकाउंट्स आर नॉट केप्ट एंड ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. यानी हमने रियल अकाउंट बनाया ही नहीं तो एसेट्स अकाउंट भी नहीं बनेंगे, ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाए. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं राइट, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है राइट, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं है तो फाइनल अकाउंट हम नहीं बना सकते. तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू नो द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस व्हेन इट इज़ इजीली अवेलेबल. व्हेन यू नो इजीली दिस टाइप ऑफ द ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एट द टाइम व्हेन द पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस आर प्रिपेयर. लेकिन वो नहीं बनता है तो फिर हमारा बैलेंस शीट नहीं आएगा, बैलेंस शीट नहीं यानी फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, तो फिर ट्रू एंड फाइनेंशियल फेयर फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास नहीं आएगी. Fourth one, difficulty in making decisions. Due to inadequate information, difficulties arise in making decisions like determining purchase price of the business, taking a loan, taking an insurance, etc. तो कई बार आप डिसीजंस लेना चाहते हो फिर भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. आपका परचेस कितना है, आपका सेल कितना है, आपके पास एसेट कितनी पड़ी, आपको कितना डेट है, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो डिफ़िकल्टीज होगी डिसीजंस लेने में कि कौन कौन से पर्टिकुलर हमने जो रॉ मटेरियल यूज़ की है उसके हिसाब से क्या भी प्रोडक्शन है. अब बड़े यूनिट तो है नहीं तो फिर प्रोडक्शन की बात तो शायद हम ना करें तो अच्छा है, लेकिन हम जब प्राइस डिसाइड करते हैं बिजनेस में वो डिसीज़न हम इजीली नहीं ले सकेंगे. अगर हमें लोन चाहिए वो नहीं मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. बिकॉज ऑफ दिस सिंगल एंट्री सिस्टम राइट, परचेज प्राइस डिसाइड नहीं होती है, लोन हम नहीं ले सकते और इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते. ऑन विथ व्हाट फ्लोर, ऑन व्हाट बेसिस यू विल पर्टिकुलरली टेक बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस एंड लोन? नो, बिकॉज बैंक पहला ही मांगेगी आपका प्रॉफिट 3 साल का बताओ, वो तो हमारे पास है नहीं, और अगर होगा भी तो भी वो प्रॉपर मैनर में नहीं है ना, सिंपल. फिफ्थ वन, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, फ्रॉड और मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स. यानी कई बार वो संभवित रहता है कि फ्रॉड या एरर्स हो सकती है और मैनिपुलेशन हो सकता है अकाउंट्स में. देयर इज़ नो कंट्रोल इन दिस मेथड लाइक इन डबल एंट्री सिस्टम है. उसमें हम सीधा, और हमने रेक्टिफिकेशन एरर्स भी देखा है, उसमें भी हमने देखा है कि कैसे हम एरर्स को ढूंढ के फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं, तो एरर्स भी नहीं मिलेगी. सो देयर इज़ मोर और देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स हो सकता है. 6 वन, लेक ऑफ एक्विजिशंस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग ऑपरेशंस. तो वी डोंट हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि वी कैन राइट डाउन दैट पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ द बिजनेस इन द सेंस ऑफ द accounts, final accounts. So it is not possible to get the accurate information about the trading operations because complete records are not kept for all transaction. तो अगर हमें एक्विजिशन ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नहीं मिल सकेगा क्योंकि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है ही नहीं ना. सो वी कैन से इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग ऑपरेशन. तो ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए शायद वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन फ्यूचर. लास्ट, reliability. This method is incomplete, so it is not reliable.
उस पर हम रिलायबल नहीं रह सकते। सो अकाउंट्स बाय दिस मेथड आर नॉट कंसिडर रिलायबल बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट। यानी ये अप्रूव्ड नहीं है, तो इसका यूज़ करके हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो ये तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत छोटा काम है, जिनका काम बहुत कम है, राइट। तो इसको रिलायबल है ही नहीं, तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगी, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, टैक्सेशंस का जो भी है वो, तो आप टैक्स भी कैसे पे कर सकोगे, राइट। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। सो वी डिस्कस दैट मीनिंग, राइट, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी लेस यूजेस एंड लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस। सो इसका यहीं पर आपको मालूम पड़ जाता है कि इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर दी big sized units, it is for small traders. So that's the end of the chapter also, right। बहुत छोटा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है, राइट। आफ्टर दिस वन आई विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अकाउंट्स। थैंक यू।